Today we will discuss about the topics of modern physics. So what we have in modern physics. So today our discussion points are cathode ray, which you have already studied in your earlier standard, cathode ray. Then we will understand what is X-ray, how X-ray is produced, what are the properties of X-rays, what are different types of X-rays. Then free electron theory. What is work function? This is a new term that you will understand here today. What is work function? Then photoelectric effect. What is photoelectric effect? And how photoelectric effect depends on intensity, frequency and applied potential difference. That also we will understand. We will try to understand a new term called stopping potential, laws of photoelectric emission and Einstein photoelectric equation. So these are the 8 topics that we will try to cover within 1 hour. Okay. So first of all, cathode ray, which you already studied. So we have a cathode tube, just a revision of that part. We have a cathode tube here. Cathode tube means this should be at the negative and this should be at the positive. This is our anode. The electrode connect with the positive terminal is the anode and this is cathode. So what will happen? If you decrease the pressure inside the tube and apply potential difference here, okay, so what will happen? Beam of streams of electrons are emitted from the cathode. Okay, this is the cathode and it goes towards the anode, positive terminal. Okay, so what are the properties of cathode ray? Few properties I will discuss. First of all, they are beams of electrons, so negatively charged particles. They can ionize the gas. Ionization means when they collide with the atoms of gas, they can knock out electrons of the outermost orbit. So when electrons from the atoms are knocked out, then number of proton increases, number of electron becomes less, so atom gets positively charged. Okay, so that is the ionizing power of electron. So electron has ionizing power. Okay, now if we apply electric field here, suppose this is positive plate, this is negative plate, so what will happen? The beam of electrons being negatively charged electrons, they are negatively charged, so what will happen? These electrons will bend towards the positive plate of the electric field because they are negatively charged. Okay. Now third part is they are also affected by the magnetic field. If we apply magnetic field, if we keep the north pole and south pole, then these electrons also gets deflected because we have interaction of charged particles in magnetic field. These are charged particles, it will interact with the magnetic field. They can produce certain mechanical motion, all these things. So this we have already studied. So these are simply cathode rays are the beams of electrons. Now what is X-ray? Basically, we will try to understand what is X-ray. Suppose you have one atom. We have one atom. Okay. So this atom has protons in the nucleus and electrons in the outermost orbit. These are the electrons. Let us take a very simple model. We have electrons like this. So if a electron comes with a very high velocity towards this atom, what can happen? क्या हो सकता है? ये electron जो है, this electron is coming towards this atom. So this electron is negatively charged electron. This electron is negatively charged. Now it is coming towards this atom. These orbital electrons has a negative electric field. Okay. So negative electrons will repel this approaching electron. ये जो electron सामने आ रहा है, इस electron को क्या करेगा? Repel करेगा. Because these are also negative. Electron is approaching electron भी negative है, ये भी negative है. तो क्या होगा?
ये जिस स्पीड से आ रहा था उसका स्पीड कम हो जाएगा. ओके, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. बहुत कम टाइम पे ये काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाता. तो अभी अगर अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो एनर्जी जाएगा कहाँ. ओके, so that energy is converted to X-ray. This energy is converted to X-ray, and this is called Bremsstrahlung. Okay, this is called Bremsstrahlung. Means approaching electron, because of the repulsive force field of these orbital electrons, this approaching electrons kinetic energy gets reduced. Electron का energy reduce हो गया, और ये जो reduced energy है, these are coming in the form of X-ray. Okay, this X-ray is called continuous X-ray. This is called continuous X-ray. So this is one way of producing X-ray. Suppose this electrons comes here and collide with one electron. Suppose this electron collides with this electron. So what will happen? Electron will transfer its energy to this orbital electron. So when this orbital electron gets energy, what will happen to this? This electron will jump to the higher orbit. Okay, this will jump to the higher orbit. The moment this electron jumps to the higher orbit, a vacancy will be created here. No electron in this. So electron energy cell, this cell cannot remain in blank space. ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, अभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ गया. अभी एनर्जी बढ़ जाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में अभी नहीं रह पाएगा. अगर नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, ये हायर एनर्जी स्टेट जहां पर उसका ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है, तो इस जगह में वैक्यूम हो जाएगा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. नाउ ये जो वैक्यूम है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हुआ, ये जो एनर्जी का पोस्ट एक खाली हो गया, ये जगह फिल करने के लिए कौन कैपेबल है, ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको देखेगा कि अच्छा यहाँ जाने से मेरा एनर्जी कम हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जंप कर जाएगा. सो सपोज इस जगह पे उसका एनर्जी था E2, यहाँ पर आने से उसका एनर्जी हो गया E1. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूरी पर रहेगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होता है. ओके, सो E2 इज ग्रेटर देन E1. दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, अपना एनर्जी को कम करना चाहेगा. कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप किया, तो इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी कम हो गया, E2 माइनस E1 डेल्टा E. ठीक है, तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, ये एनर्जी कम हो गया, तो ये एनर्जी जाएगा कहाँ, इस एनर्जी का तो कुछ कन्वर्शन होना चाहिए. दिस एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे. ठीक है, दिस एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्सरे एंड दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट. सो दिस मच फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे विल बी जनरेटेड. ओके, so higher is the energy gap, higher will be the frequency. So now we will try to understand this is what is this type of X-ray जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण हो रहा. जब एक इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, एंड दिस एक्साइट्स, दिस एक्चुअली ट्रिगर्स, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ट्रिगर करता है. तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होकर नीचे आएगा. Any electronic transition is accompanied by emission of energy. Okay, so this kind of energy is called characteristic X-ray. So there are two types of X-ray. One was before colliding with the orbital electron, energy कम हो गया, इसको Bremsstrahlung कहा जाता. इसको क्या कहा जाता, continuous X-ray. एक बार इलेक्ट्रॉन फोर्स फील्ड में घुस गया, फिर भी इलेक्ट्रॉन का काफी ज्यादा, सपोज अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन में तुमने इतना एनर्जी भर दिया कि वो पेनिट्रेट करके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को के साथ कोलाइड कर गया, अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया. उस समय ये जो एनर्जी निकल रहा है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. कैरेक्टरिस्टिक
एक्सरे, करेक्ट। एंड दिस जब ये अप्रोच कर ही रहा था, एनर्जी रिड्यूस हो गई, इसको क्या कहता है, ब्रेन स्ट्रॉलम, और इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस एक्सरे। दिस टाइप ऑफ एक्सरे इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे समझ में आ गया। एक्सरे दो टाइप का होता है कि कितना वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, गामा रे, एक्सरे, visible rays, ultraviolet, infrared rays, microwaves, radio waves, okay, X-rays, all are electromagnetic wave. सारे electromagnetic wave का velocity कितना होता है, 1,86,000 miles per second. That is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the velocity of electromagnetic wave. So X-ray का भी velocity कितना होगा, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So ये जो velocity है, this is the product of frequency and wavelength. ठीक है, अगर frequency and wavelength में क्या relation है, this, तो जिसका frequency ज़्यादा होगा उसका wavelength कम होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर वेव जीरो का एग्जांपल देता हूँ, ये क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है इस स्पेक्ट्रम में, तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। ओके, सो वेवलेंथ, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, वेव के लिए दोनों का प्रोडक्ट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, हाउ दे आर रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। एक्सरे का वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम इस वेवलेंथ तक होता है। ओके, जिसका वेवलेंथ कम होता है, ये रेंज है एक्सरे का वेवलेंथ का रेंज। ओके, 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ओके, से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो अगर एक्सरे का वेवलेंथ कम होगा, ओके, दैट इज one is short X-ray, other is hard X-ray. So we'll try to understand this also कि कब कम वेवलेंथ वाला एक्सरे इमिट होता है और कब ज्यादा वेवलेंथ वाला एक्सरे इमिट होता है। ओके, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर एक्सरे प्रोड्यूस करना है, सो व्हाट वी नीड एक्चुअली, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, सो सपोज एक इस टाइप का एक ट्यूब ले लिया और इसका जो अंदर में जो गैस है, इस गैस को निकल के इसका अंदर का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हमने 10 to the power -5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बहुत ही कम कर दिया प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक कैथोड ले लिया और यहाँ मेरा एक एनोड ले लिया। ओके, दिस इज द connected with the positive terminal and this is connected with the negative terminal. Okay, यहाँ पर एक मैंने कॉपर का ब्लॉक, इसके अंदर सामने एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे भी करेंगे, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी क्या होगा, ये जो कैथोड रे है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जैसे ही अगर मैं यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दूं, यहाँ पर एक रियोस्टेट टाइप का भी ले सकता हूँ मैं ऐसे, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ रहेगा, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, उसके लिए मेरे पास एक वोल्ट मीटर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें वोल्टेज को मैं बड़ा कम कर सकता हूँ इसके हेल्प से। ओके, तो मैं जैसे ही हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, जितना भी हमारा वोल्टेज अप्लाई करना है,
इस वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं वोल्टेज चेंज करूंगा तो ये इसका स्पीड में भी असर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ जाएगा तो यहाँ से एक्सरे एमिट होगा। सो दिस इज हाउ द एक्सरे गेट्स एमिटेड। मैंने जैसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से क्यों एक्सरे निकलता है, ओके। अभी ये क्लियर हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एक्सरे। इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक विद द टारगेट एलिमेंट, दिस टारगेट एलिमेंट इज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोलिब्डेनम का होगा, ओके। ये कॉपर ब्लॉक के सामने में इसको रखा जाता है। इसको किस तरह से फिट किया जाता है ताकि ये 45 डिग्री में इंसिडेंट हो, ये सब है इसके अंदर। बट दिस इज जैसे स्ट्राइक करेगा या जा रहा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो इस समय एक्सरे निकलेगा, कोलाइड करेगा, फिर एक्सरे निकलेगा, ओके। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कमर्शियली एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे बाय Coolidge ट्यूब। Coolidge ट्यूब कमर्शियली एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। सो एक हार्ड ग्लास का ऐसे ट्यूब रहेगा, ऐसे। इसमें एक्सरे जितने भी एनर्जी लॉस होता, पूरा एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट नहीं होता। ओनली 0.2% ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स टू एक्सरे। बाकी जो जितने भी एनर्जी है ना वो वेस्ट हो जाता है। दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। तो अभी उसके लिए प्रॉपर मुझे इंतजाम करना पड़ेगा कि वो हीट जो है उसको सिंक किया जाए, उसको कूल किया जाए, ओके। सो लेट अस सपोज हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ तो गर्म करना पड़ेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो यहाँ पर सपोज मैंने एक फिलामेंट दिया। फिलामेंट क्या कर रहा है, इसको गर्म करने से, दिस इज ए फिलामेंट। इस फिलामेंट से क्या होगा, इसको गर्म करेगा, जैसे ये हीट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ओके। नाउ हियर दिस इज माय कैथोड पार्ट ऑफ इट, ओके। सो दिस इज माय कैथोड पार्ट ऑफ इट। तो कैथोड पार्ट में क्या हो रहा, एक फिलामेंट ले लिया। फिलामेंट जैसे ही इसको हीट कर रहा है कैथोड प्लेट को, कैथोड प्लेट को हीट करने से कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ओके। दिस पार्ट इज ओके। नाउ इन द एनोड पार्ट हियर वी हैव वन ब्लॉक ऑफ कॉपर। यहाँ पर एक कॉपर का ब्लॉक रखा गया और इसके ऊपर एम्बेड करके एक मोलिब्डेनम का मेटल पीस रख दिया। दिस इज मोलिब्डेनम, ओके। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड टारगेट एलिमेंट। इसको क्या कहा जाता है, टारगेट। यूजुअली मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे मोलिब्डेनम हुआ, इस टाइप का एलिमेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। इस तरह से इसको लगाया जाता है ताकि ये जो इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कितना डिग्री में इंसिडेंट हो, 45 डिग्री में, 45 डिग्री में इंसिडेंट हो, करेक्ट। अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो इसका ओनली फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट होगा। दिस विल प्रोड्यूस एक्सरे। और इसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर को हम लोग 10⁻⁵ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के सराउंडिंग में मुझे कूलेंट यूज करना पड़ेगा। यूज कूलेंट। यहाँ पर फिन्स ऑफ कूलेंट मतलब जो इसको ये एनोड असेंबली, दिस इज कॉल्ड एनोड असेंबली। एनोड असेंबली में इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर तुम इसको प्रॉपरली इसका हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये असेंबली खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअसली तुम कूलेंट ऐसा कुछ लिक्विड पास करो या फिर कुछ एयर कूलेंट एयर यूज करो जिससे कि ये असेंबली मेरा कंटिन्यूअसली ठंडा रहे, ओके। सो कूलेंट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द हीट। तो अभी क्लियर हो गया, फिलामेंट क्या करेगा, इस कैथोड को हीट करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हाई मेल्टिंग पॉइंट टारगेट को हीट करेगा, ओके, एंड उसी से मेरा क्या होगा, एक्सरे एमिट होगा, ओके।
Now कब हार्ड एक्सरे, व्हाट इज हार्ड एक्सरे एंड व्हाट इज सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। तो सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे का क्या डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया कि वेवलेंथ जो है ना 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ओके। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस वेवलेंथ का मेरा एक्सरे निकलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कितना वोल्टेज मैंने इधर अप्लाई किया, ठीक है। सो हमने एक, मेरे पास एक रेंज ऑफ वोल्टेज है, जिस रेंज ऑफ वोल्टेज को मैं अगर अप्लाई करूंगा तो एक्सरे निकलेगा। लेट अस सी आवर नोट्स आल्सो। So this is how the X-ray is produced, okay. This is the production of X-ray by Coolidge tube. Now what are the properties of X-ray? Properties of X-ray is they are electromagnetic wave. First of all the properties of electromagnetic waves are the properties of X-ray. Electromagnetic waves means they are neither deflected by electric field or magnetic field. इससे इसका interaction नहीं होगा. Velocity is 3 into 10 to the 8 meter per second. They are not affected by electric magnetic field, but yes, they can affect the photographic plate. क्लिनिकल के लिए हम लोग क्लिनिकल एक्सरे यूज करते हैं, ओके। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिफेक्ट जानने के लिए भी एक्सरे यूज किया जाता है, ओके। एंड दे हैव आयनाइजिंग पावर आल्सो। सो दिस पार्ट वी हैव कवर्ड हाउ एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर द properties of X-rays. Now let us try to understand the third part, that is the free electron theory of metal. इसमें क्या कहा जाता है कि suppose you have the metal. So metal consists of atoms. Atoms consist of protons in the nucleus and electrons in the outermost orbit. Okay, these are the nucleus of atoms. अगर कोई मैं इलेक्ट्रॉन को लेता हूं यहाँ पर, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, करेक्ट, न्यूक्लियस। बट इधर भी एक, अगर दूसरा मैं एटम लेता हूं, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन से फ्रीली मूव, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है, okay. Outermost electron is loosely bound, is not under the very heavy attraction of nucleus. So वो सब atoms का electrons क्या है, metal के अंदर में freely move कर सकता है, okay. Those electrons can move freely inside this. But जब surface का बात आया, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा, this electrons cannot come out. क्यों? बिकॉज ये इधर भी अट्रैक्ट है, इधर भी अट्रैक्टेड है, ठीक है, एटम से बाउंडेड है, ओके। दे कैन नॉट लीव द सरफेस बट कैन मूव फ्रीली इनसाइड द सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस फॉर्म में अंदर में रहेगा, फ्रीली मूव भी कर सकता। नॉट सभी एटम्स के नहीं, वो सब एटम्स जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, ओके। बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लीव द सरफेस, ओके। दिस इज व्हाट द फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को सरफेस से डिटैच करना है तो कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा, देन ओनली द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट। जितना मिनिमम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन को मैं नॉकआउट कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकाल सकता हूं, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी मुझे क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी सेज कि electrons can move freely in certain cases where they are loosely bound with the nucleus and they form the electron gas, electron cloud inside it. But on the surface they are bounded by some inward force. Okay, they are
bounded by inward force. Easily they cannot come out. Automatically they not come out. अपने से नहीं निकलता है. ओके, इसको निकालने के लिए मुझे कुछ तो एनर्जी इसके अंदर सप्लाई करना पड़ेगा, तब एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है. जो मिनिमम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है उस वर्क को क्या, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. So what is work function? The minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called work function. ठीक है? अच्छा, तो एनर्जी हम किस तरह से दे सकते हैं? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ये पढ़ेंगे. तो अगर मेरा ये एनर्जी मैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी दे दिया, लाइट में क्या रहता है? फोटोन्स. ईच फोटोन कंटेन्स energy and this energy is equal to h into nu. H is Planck's constant, okay, and nu is the frequency of light. तो एक फोटोन एनर्जी कैरियर कौन है? जैसे लाइट आ रहा है तो एनर्जी को तो कुछ कोई कैरी तो कर रहा है. ओके, दिस एनर्जी कैरियर पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन्स. फोटोन और ऑर्डिनरी पार्टिकल में डिफरेंस रहता है. फोटोन्स आर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल. ओके, हम लोग इसमें डिटेल्स में कभी पढ़ेंगे व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल. बट नॉर्मल पार्टिकल और फोटोन में डिफरेंस क्या है? फोटोन डू नॉट हैव एनी रेस्ट मास. जब वो रेस्ट में आता है उसका कोई मास नहीं होता. नॉर्मल पार्टिकल का रेस्ट मास होता है. ओके, सो दिस मच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट ये फोटोन एनर्जी कैरी करेगा. ये फोटोन अपना जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी है उसको कैरी करने वाला पार्टिकल है फोटोन. ये अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है. तो इस टाइप का कुछ कुछ सरफेस है जिस सरफेस में मैं जैसे ही एनर्जी दूंगा वो उसका जो अंदर का इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ सकता है. इस टाइप का जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको हम क्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? The emission of electron in certain metals surface because of the incident light energy is called photoelectric effect. Correct? Actually क्या हो रहा है? Incident light energy का photon imparts the minimum energy required to eject the electron. मतलब उसको work function दे देता है. ठीक है, एनर्जी दे देता है, उससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड. अच्छा, एक तरह से हो गया कि लाइट एनर्जी देके मैं इलेक्ट्रॉन निकल सकता हूँ. करस्पॉन्डिंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ये हो गया जब लाइट एनर्जी दिया, लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिया तो करस्पॉन्डिंग एमिशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. एक ये भी हो सकता कि चलो मैं इस मेटल सरफेस को गर्म कर दिया, जैसे अभी एक्सरे में हमने देखा था कि फिलामेंट से गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन निकला. ठीक है, सो अगर मैं गर्म करके हीट करके इलेक्ट्रॉन निकल रहा हूं तो इफ द इंसिडेंट एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, द करस्पॉन्डिंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहा जाता है? थर्मोआयनिक एमिशन. ओके, दिस इज कॉल्ड थर्मोआयनिक एमिशन. thermoionic emission. What is this? When the energy supplied to eject the electron is in the form of heat energy. Corresponding emission of electron is called thermoionic emission. Okay. Next. Electrons can be knocked out by applying potential difference. जैसे अभी हमने दिखाया था कैथोड एनोड सिस्टम में. ठीक है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इधर अप्लाई कर दिया तो भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया जा सकता है, तो दिस करस्पॉन्डिंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फील्ड एमिशन. कब फील्ड एमिशन होगा? जब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. इफ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाई वोल्टेज, okay, then corresponding emission is known as cold or field emission. Because of the electric force, electric field you have applied and the electrons are knocked out. This is called field emission. और एक होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलना है, चलो बॉम्बार्डमेंट कर दिया,
by colliding particles. Okay, high energy electron जैसे ionization होता है. Okay, this is what knocking off electrons from the outermost orbit. Gaseous molecules के होते हैं. So this is the ionization. Okay, by high speed electrons or high speed particles. Okay, so this is by collision. तो इससे आयनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा. सो दिस आर हाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड. और वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी. जो मिनिमम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा उसको क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन. ये क्लियर हो गया. नाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स. Let us set up one experiment. मैं एक ट्यूब ले लिया, ट्यूब में एक क्वार्ट्ज विंडो रखा. ये क्या है? क्वार्ट्ज विंडो. क्वार्ट्ज विंडो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट लाइट को अलाउ करता है. ओके, what the quartz window does? It allows the ultraviolet light to pass through. अभी हमने विजिबल स्पेक्ट्रम देखा था, तो विजिबल स्पेक्ट्रम का विजुअल में क्या है? वायलेट, इंडिगो, इस तरह से आज तक रेड है. रेड का उस तरफ क्या है? इंफ्रारेड है. ठीक है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है. ओके, इस तरफ क्या है? वायलेट है. वायलेट का आगे क्या होगा? तो वायलेट का वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. वायलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन होगा? अल्ट्रावायलेट. तो हमने अल्ट्रावायलेट लाइट को अगर इस मेरा यहाँ पर एक एमिटर है, इस एमिटर में दिस इज कॉल्ड एमिटर, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, तो इसमें मैं इंसिडेंट कराऊंगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये इस टाइप का सरफेस है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है. मतलब इसको जो वर्क फंक्शन चाहिए था वो मिल गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. सो दिस कैन एमिट द इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज कॉल्ड एमिटर. इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करो. अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए होना चाहिए. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कलेक्टेड हियर. तो यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर एक एनोड लगा दिया. सो दिस इज कॉल्ड एमिटर. एक्चुअली दिस इज कैथोड. ओके, दिस इज कैथोड कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके, एंड दिस इज कलेक्टर. कलेक्टर मतलब दिस इज द एनोड एक्चुअली. ओके, दिस इज एनोड. बट मुझे क्या करना है कि कितना करंट सर्किट में आ रहा है? बहुत ही फीबल करंट, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है. तो उसको करंट को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? एमीटर. तो माइक्रो एमीटर एक ले लिया, इसका स्केल माइक्रो में रहेगा. दिस इज ए माइक्रो एमीटर कनेक्टेड. और करंट मेजर करने के लिए क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट करने पड़ता है. ओके, और कितना वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये जानने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करो. वोल्ट मीटर ऑलवेज किससे कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है. ओके, अप्लाई. अच्छा, अभी यहाँ तक तो हो गया. आई कैन रिमूव इट. अभी मुझे क्या चाहिए ना, ये दोनों के बीच में मुझे क्या क्या फैक्टर के ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट देखना है. वन इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट. ओके, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी. थर्ड है कि मैं इन दोनों के बीच में, एमिटर और कलेक्टर के बीच में, मतलब कैथोड और एनोड के बीच में मैं ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर पाऊँ, ऐसा मुझे सिस्टम बनाना है. तो इसको एक कम्यूटेटर अरेंजमेंट किया जा सकता है इस टाइप का. तो जिसमें क्या रहेगा कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके अंदर बैटरी रहेगा. सो वी हैव अ सेट ऑफ वोल्टेज सिस्टम. यहाँ पर मैं बैटरी लगा के रख सकता हूँ. तो जहां पर मैं कनेक्ट करूंगा ना, उससे वो उतना वोल्टेज लग जाएगा. V इक्वल टू आई आर. यहाँ पर मैं कनेक्ट किया, इसको टच किया तो इतना वोल्टेज लगेगा. इसको V इक्वल टू आई आर, इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे. तो ये क्या है? दिस सिस्टम अलाउज मी टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, जैसे रियोस्टेट रहता ना, ऐसे ऐसे करने से दैट काइंड ऑफ सेट. अच्छा, तो मेरे पास इस सर्किट का करंट मेजर करने के लिए मेरे पास माइक्रोमीटर हो गया, वोल्टेज अप्लाई के लिए चेंज हुआ, मैं ये सब चेंज कर सकता हूँ. सो लेट अस डू सम एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट,
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कि मेरे पास 3 फैक्टर के ऊपर मैं ये डिटरमाइन करना चाहता हूँ कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ऑटोमेटिकली सर्किट में एक करंट फ्लो होगा। ओके, क्योंकि देखो ये एनोड और कैथोड के बीच में स्पेस है, ठीक है, कोई गुड कंडक्टर नहीं है यहाँ पर कि ये वोल्टेज के लिए करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज नॉट लाइक दिस। अगर ये अल्ट्रावायलेट के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा होगा ना, तो फिर इस सर्किट में करंट फ्लो करने वाला नहीं है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो सर्किट मेरा कंप्लीट हो रहा, तो ये जो माइक्रो एमीटर में लगाया उसके अंदर मेरा रीडिंग दिखाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो मैं क्या किया, पहले ये इंसिडेंट एनर्जी का फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया, फिक्स्ड किया कि चलो यही अल्ट्रावायलेट रे तो अल्ट्रावायलेट रे ही इंसिडेंट होगा, और इसका वोल्टेज को भी कांस्टेंट कर दिया, मतलब इसको आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, वोल्टेज को भी कांस्टेंट कर दिया। ओके, अभी मैं क्या किया, इसका जो इंटेंसिटी है इसको बढ़ाया। इंटेंसिटी मतलब कितना जोरदार लाइट, कितना हाई इंटेंस लाइट मैं उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। कभी इंटरफेरेंस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के साथ डिपेंड करता है। ओके, सो विल स्टडी अबाउट इट, बट वी कैन वेरी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये देखा गया कि अगर तुम इंटेंसिटी को वेरी करते रहोगे, कम इंटेंस लाइट लगाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, ठीक है, तो क्या होगा, एक तरफ तुम एक काम करो, इधर इंटेंसिटी बढ़ाओ और एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दोनों आई है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दिस स्मॉल आई इज द current measured in the microammeter, okay, and this I is the intensity of the capital I क्या है, intensity of the incident light। तो क्या होगा, जितना मैं इंटेंस लाइट बढ़ाते जाऊंगा, इंटेंसिटी जितना बढ़ाते जाऊंगा उतना मेरा क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते रहेगा। करेक्ट। सो इफ frequency and applied voltage are constant, then the photoelectric current is proportional to the intensity of the incident light. This is also called the first law of photoelectric effect. Correct? तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो इसे ये एक्सपेरिमेंट भी किया और हमको पता भी चल गया कि इंटेंसिटी के साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन है। ओके, अच्छा, हमको पैरामीटर 3 ही है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया और फोटोइलेक्ट्रिक करंट को चेंज करते हुए हर एक बार फोटोइलेक्ट्रिक करंट मेजर किया, ग्राफ प्लॉट किया, हमको ये रिलेशन पता चल गया कि इंटेंसिटी, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसको फिक्स करूंगा, इसको फिक्स करूंगा, ठीक है, दोनों को कांस्टेंट रखूंगा और फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब क्या है, ये जो अल्ट्रावायलेट रे है उसका भी अलग अलग लाइट हम इंसिडेंट करा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी बिग जोर में बोला था, करेक्ट, सबका अलग अलग वेवलेंथ है, वेवलेंथ चेंज होगा मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करूंगा और नाउ वी आर कीपिंग आई इंटेंसिटी एंड द अप्लाइड वोल्टेज, दिस टू आर कांस्टेंट। मैं चेंज क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी करूंगा। तो ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर लाइट नहीं है ना, तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं निकलेगा। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होने के बाद ही फोटोइलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होने से ही लाइट निकलता है, वो अगेन डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या सरफेस लिया, जो टाइप ऑफ एमिटर सरफेस जहां से फोटो, ये डिफरेंट मेटल का हो सकता है। दिस सरफेस, ये जो मेटेलिक सरफेस है, ये किस टाइप का मेटेलिक सरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी डालने से एनर्जी निकलेगा। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एमिटिंग सरफेस। हर एक एमिटिंग सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो मैं क्या कर रहा, एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच में अभी प्लॉट होगा, फ्रीक्वेंसी
एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मेजर हो रहा है? माइक्रो एमीटर से। फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से लाइट सोर्स क्या कर रहा हूँ? कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा। तो ये देखा गया कि जब तक मेरा इधर क्या है फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या है फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं देखा कि जब जीरो है फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं, कोई फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं, बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हुआ ना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाया तो मेरा क्या है फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, ओके। अप टू ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी there is no photoelectric current, but beyond that if you increase the frequency of the incident light the photoelectric current increases. ये जो frequency है, जो minimum frequency देने से minimum frequency required for the incident light to emit electron, इस minimum frequency को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड frequency, थ्रेशोल्ड frequency। ये क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जाता है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एमिटिंग सरफेस। ये क्या हो गया? दिस इज एमिटर 1, एमिटिंग सरफेस 1। सिमिलरली मैंने इसका सरफेस को चेंज किया, दूसरे सरफेस को लेके आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एमिटर 2। देखो इसमें मैंने क्या किया? एमिटर 2, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये था, ν1 था, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν2 है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सरफेस, हर एक सरफेस के लिए अलग अलग होता है, ओके। सो देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड below which no photoelectric currents are observed. Okay, this minimum frequency is called the threshold frequency, and above it, if you increase the frequency, the photoelectric current also increases. When it is increases, when the intensity and the applied voltage are kept constant. So this is the second law. Okay. Now third. अभी क्या हो गया मेरा? ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अभी मैं इसको चेंज करूंगा और ये दोनों को कांस्टेंट रखूंगा। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को कांस्टेंट रखूंगा और फ्रीक्वेंसी को, और मैं क्या करूंगा? अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करूंगा। कैसे? ये कम्यूटेटर अरेंजमेंट जो है, इससे मैं आगे पीछे करके अप्लाइड वोल्टेज को मैं चेंज कर सकता हूं। मेरा लाइट सोर्स भी सेम रहेगा, ओके, और इंटेंसिटी भी सेम रहेगा, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन नाउ। So now we are changing the applied voltage. ये देखा गया कि suppose मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। What we are changing? We are changing the applied voltage and we are keeping the intensity of the incident light and the frequency of the incident light. These two are kept constant. ये देखा जाता है कि जैसे ही मैं ये अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट का मैं ग्राफ देखना चाहता हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज के साथ फोटोइलेक्ट्रिक करंट में कितना बढ़ोतरी है, कितना कम हो रहा है। अगर ये मुझे करना है, ये मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? जैसे जब ये पॉजिटिव रहता ना, तब अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव मतलब क्या है ना, इसका ये कैथोड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज कैथोड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, बहुत ज्यादा तो इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत बढ़ता है, बट एट मोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। ये क्या होता है? दिस इज कांस्टेंट। तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फोटोइलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। बट अगर मैं ये कलेक्टर जो है, जो मेरा एनोड है, इस एनोड को अगर मैं नेगेटिव कर दिया, ठीक है, नेगेटिव कर देने से क्या होगा बताओ? नेगेटिव कर देने से जो ये इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, कैथोड इज आल्सो नेगेटिव, फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही जाएगा। तो इफ यू मेक इट मोर एंड मोर नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन ना एक समय इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं नेगेटिव करना स्टार्ट कर दूंगा कलेक्टर को, कैथोड को, तो क्या होगा? ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट हेवीली रिड्यूसेस। क्यों रिड्यूस होगा?
क्योंकि कैथोड मेरा नेगेटिव टर्मिनल में है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नेगेटिव, दे विल रिपेल करने से भी नहीं आएगा। अल्टीमेटली इतना नेगेटिव कर सकता हूं मैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ये जो एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, उसको भी मैं फोर्स कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा कि जैसे ही मैं ये अप्लाइड वोल्टेज को नेगेटिव किया, इस तरफ ये एक मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स डैश एक्सिस है, तो इस तरफ क्या होगा नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे ही मैं नेगेटिव करते जाऊं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका फोटोइलेक्ट्रिक करंट अभी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, जीरो में आ गया। सो दिस जो वोल्टेज अप्लाई करने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता, उसको क्या कहा जाता, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अभी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से एमिटिंग सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला था, उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया हमने। मतलब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी था इस इलेक्ट्रॉन में, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी को मैं न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, करेक्ट। सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। ठीक है, अच्छा। So now we have studied about, so क्या हो गया कि as long as the applied voltage is increase in the positive direction, the photoelectric current remains almost same. Okay, saturation level पे रहता है. But as the potential reversed, applied potential reversed becomes negative, then the photoelectric current becomes heavily reduces. Okay, देखो ना कितना शार्प है ग्राफ, heavily reduces and becomes zero at a particular potential applied. वो उस समय का जो applied potential रहता है उसको क्या कहा जाता है, stopping potential कहा जाता है. ओके, एंड एक फोर्थ भी है, हम लोग बोलते हैं उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक फोर्थ पॉइंट है कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होगा तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा और निकलेगा। ऐसा कोई टाइम लैग नहीं है, देयर इज नो एब्सोल्यूट टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग between incidence of photoelectrons, incident light and photoelectric emission and photon emission, photoelectric emission. अगर निकलने वाला है ना तो जैसे इंसिडेंट होगा, ये सरफेस है, ये सरफेस से अगर मुझे इंसिडेंट लाइट है, अगर फोटोइलेक्ट्रॉन्स निकलने वाला होगा तो तुरंत के तुरंत निकलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट तक उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराओ फिर 10 मिनट के बाद निकलेगा। देयर इज नो टाइम लैग, ओके, बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्लियर हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल। दीज आर द लॉज। पहले क्या बोला कि फोटोइलेक्ट्रिक current is proportional to the intensity of the incident light when the frequency and applied voltage are constant. Second में हमने क्या बोला कि photoelectric there is a minimum frequency below which no photoelectrons are emitted and this is called threshold frequency and it increases with the increasing frequency when the intensity and voltage is applied. Third क्या मैं बोला कि as long as V is positive photoelectron currents remain same, there is a stopping potential at which the photoelectrons are not emitted. and fourth में मैंने क्या बोला कि कोई टाइम गैप नहीं है, अगर निकलने वाला होगा जैसे इंसिडेंट एनर्जी सरफेस में आएगा तुरंत के तुरंत निकलेगा। so these are all called the laws of photoelectric effect. Now most important part is Einstein photoelectric equation. So what is Einstein photoelectric equation? Let us try to understand. Very easy. Okay, very easy equation. Einstein's photoelectric equation.
इसमें क्या कहा जाता है कि सपोज एक सरफेस है, सरफेस में मेरा एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ये फोटोन एनर्जी कैरी करके, फोटोन कैरीज द एनर्जी, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अपना एनर्जी इम्पार्ट किया, उसको अपना एनर्जी दिया, फोटोन। ओके, तो अच्छा, अभी इसको जितना एनर्जी देगा, अगर उससे ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर, तो क्या होगा, ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज यूज्ड टू कमिंग आउट, इजेक्ट करने के लिए एक पार्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना हो जाता है, h इंटू द फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिससे कि वो निकलेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी। लेकिन उससे ज्यादा अगर एनर्जी दिया तो रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं, चलो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, v इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कितना हो गया, h इंटू न्यू। अच्छा, v0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, मतलब कितना एनर्जी से, कितना एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इतना देने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितना एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी इज h इंटू न्यू 0। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये जो है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और एनर्जी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इतना एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो मैंने एनर्जी दिया, सपोज जितना एनर्जी दिया उसका एक पार्ट यूज हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होगा, स्पीड से बाहर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। दिस इज व्हाट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, सो द इंसिडेंट एनर्जी इज यूज्ड ऑफ to eject the electron, that is the photo work function, plus the remaining part of the energy is imparted to provide kinetic energy to the emitted electrons. ठीक है, so this is what Einstein photoelectric emission. अच्छा, जैसा मैंने बताया था कि ये जो what is V, V is the velocity of the photoelectrons which is coming out, है ना, तो ये एनर्जी, this is also, ये जो हाफ mv स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज ऑल्सो द वर्क डन। वर्क डन मतलब ई चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल को वर्क कहा जाता है, एनर्जी को कहा जाता है। सो दिस इज सेम एज ई वी एस। व्हाट इज वी एस, वी एस इज द, इसमें रटने वाला कुछ है नहीं, इतना समझो कि ये इंसिडेंट एनर्जी आया, सपोज फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट एनर्जी मैंने 10 जूल दे दिया, चलो, तो इसमें से 1 जूल इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, तो 1 जूल इधर हो गया, बाकी 11 जूल से क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। दिस इज द हाफ m इंटू v स्क्वायर, योर m इज व्हाट, मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटिंग, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जितना वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। तो ज्यादा एनर्जी दोगे तो वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड ही है उस सरफेस के लिए, तो ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, इसको स्टॉप करने के लिए हमने क्या देखा कि अप्लाइड वोल्टेज को अगर नेगेटिव कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, तो रिवर्स वर्क जो हम कर रहे हैं वोल्टेज अप्लाई करके, दैट इज व्हाट, दिस इज हाउ मच चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वीएस क्या है, जो मेरा कलेक्टर का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो एनर्जी एंड चार्ज इनटू पोटेंशियल दे आर सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, इस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे ईवीएस लिख सकते हैं। करेक्ट, सो एच कांस्टेंट, एच से डिवाइड कर सकते हो, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड लाइट, ओके, इज इक्वल टू न्यू 0 प्लस ईवीएस बाय न्यू। एच से मैंने थ्रू डिवाइड कर दिया। ठीक है, this is called Einstein photoelectric equation. So let's see what is our notes first. Now X-ray, पहले तो what is cathode ray, उसका property हमने देखा, correct? You understood this?
देन हमने एक्सरे पढ़ा, एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो वही करता है कहाँ से 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। अब कितना वोल्टेज अप्लाई करने से कितना एंगस्ट्रॉम को निकलेगा उसके हिसाब से एक्सरे को हम लोग डिवाइड किया कि कैसे, हाँ शॉर्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ जो है, ठीक है, एक्सरेज ऑफ कंपैरेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरे। और सॉफ्ट एक्सरे का कंडीशन क्या है, अगर 10 किलो वोल्ट से 30 किलो वोल्ट के बीच में मेरा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्या निकलेगा, सॉफ्ट एक्सरे निकलेगा, ठीक है। तो हार्ड एक्सरे क्या है, शॉर्टर हार्ड एक्सरे, एक्सरेज कंपैरेटिवली शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, वो क्या है, एक्सरे ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ को सॉफ्ट एक्सरे कहा जाता है। और एक्सरेज ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब समझ लो ना, हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हार्ड एक्सरे कहा जाता है, इज नोन एज हार्ड एक्सरे। तो हार्ड एक्सरे निकलता कब है, जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 50 किलोवोल्ट टू 100 किलो, हाँ मतलब जैसे हमने 10 to 30 के रेंज में सॉफ्ट को रखा है, बीच में थोड़ा गैप दिया, चलो डिस्टिंग्विश अच्छा से हो सकता है। तो 50 से 100 के बीच में अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज रखूं तो क्या मेरा जो फ्रीक्वेंसी है ना एक्सरे का वो ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड एक्सरे, करेक्ट। सो दिस इज ओके। सो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे निकलता क्यों है, क्योंकि अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, दैट इज द एनर्जी। तो हमने 0.2% ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एक्सरे एंड रिमेनिंग एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने निकाला, बट इसमें मैकेनिज्म बताया। एक तो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स फील्ड में एंटर करने के पहले एनर्जी रिड्यूस होने के कारण देन स्टारलाइन होता है, करेक्ट, कंटिन्यूअस एक्सरे निकलता है। फिर एक बार इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज अकम्पनीड बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज अकम्पनीड बाय एमिशन ऑफ एनर्जी, ओके। पहले हम लोग फिर फिजिक्स का एक चैप्टर है बर्मा सीरीज, पैसन सीरीज, हॉर्न सीरीज, ये सब सीरीज में हम वो भी कैलकुलेट करेंगे कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करने से, कहां से कहां तक जंप करने से किस टाइप का स्पेक्ट्रल लाइन, ओके, हम ऑब्जर्व करेंगे। सो विल हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट। बट इधर क्या है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो टाइप का एक्सरे है। फिर हमने एक्सरे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका एक छोटा सा ये लिया था, कूलिज ट्यूब के थ्रू मैंने एक्सरे प्रोडक्शन करने का कोशिश किया, ओके। एंड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, दिस इज व्हाट इज द कूलिज ट्यूब कंस्ट्रक्शन। इसमें एक टारगेट एलिमेंट होता है जो कि मॉलिब्डेनम का होता है, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नहीं तो क्या होगा, इतना टेम्परेचर में तो वो मेटल सरफेस ही मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। और उसका एंगल भी इस तरह से फिट किया जाता है कि 45 डिग्री में इंसिडेंट हो, ओके। अच्छा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी जो हीट एनर्जी हो गया उसको निकलने के लिए हमारे पास क्या है, फिन्स अरेंजमेंट है, कूलेंट का अरेंजमेंट है, करेक्ट। सो दिस पार्ट वी हैव कवर्ड, कमर्शियल पार्ट। प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टी बुक में बहुत सारे प्रॉपर्टी थ्योरी में लिखा हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू इट, बट इट इज अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अनलाइक कैथोड रे, कैथोड रे क्या है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीटा रेज, जैसे इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी में बीटा रे है, उस टाइप का स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कैथोड रे। कैथोड रे क्या है, पार्टिकल है बेसिकली, बट एक्स रे इज फोटॉन्स प्योरली, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसलिए वो डिफ्लेक्ट तो होता नहीं है, बट हम लोग एक्सरे यूज करते हैं केमिकल पर्पस के लिए, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल निकालने के लिए भी एक्सरे इंडस्ट्री में यूज होता है, ओके। सो वेरियस यूजेस ऑफ एक्सरे भी पढ़ लेना। देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन थियरी मॉडल से हमने समझाया कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो कितने तरह से मैं एनर्जी दे सकता हूँ वो भी हमने देखा, करेक्ट। कॉल्यूशन के बारे में नहीं लिखा है यहाँ पर, बट क्या है कि इट इज द हीट एनर्जी, थर्मोडायनेमिक एमिशन, लाइट एनर्जी, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन मींस अप्लाइड वोल्टेज, उससे हम डिटैच कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ओके। एंड थर्ड वन इज नॉकिंग आउट बाय बॉम्बार्डमेंट, ठीक है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये apparatus हमने सेटअप किया, करेक्ट। और इसमें 3 वेरिएंट था, क्या क्या, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
हम तीनों के एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ प्लॉट किया, सब हमने स्टडी किया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। ओके, तो जो जो कम से कम फ्रीक्वेंसी से लाइट निकलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी कम लगता है उसके लिए। ओके, सो एमीटर 1 एमीटर 2 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ओके, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म्ड। So these are the laws of photoelectric effect. Okay, ये भी हमने स्टडी किया। So this is all about your photoelectric effect and Einstein photoelectric equation. So if you see the Einstein photoelectric equation, it is a relation between the incident energy of light with the work function and the kinetic energy imparted thereafter. Work function से तो निकलेगा, निकलने के बाद उसका जितना काइनेटिक एनर्जी होगा। सो इट इज अ वेरी वेरी इजी इक्वेशन। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड दिस diodes and transistors. Okay, so that's all for today. Thank you very much.